Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease, and in the previous video we have completed till 17 question. Now we are going to start practicals on determination of equilibrium level. Okay, these are different kind of questions. Please go through that also. Okay, the previous one that we have done and this one, and do please watch the score booster series. Okay, chapter wise I have given you the explanation. Theory questions are means are in the separate video. Okay, and numericals in the separate video I have posted. Okay, please go through that, and with solutions they are there. Okay, so it will be easy for you to revise in your exams. Okay, and daily revision equals to strong concepts and every day counts. Okay, so please do watch the score booster series. Okay, so let's start here. Question number from question number 18 onwards. Okay, let me open the whiteboard. Question number 18. Investment multiplier. This is the name of the chapter from Sandeep Garg. And this is macroeconomics, right? For class 12. Okay. And the questions are determination on equilibrium income. Okay. Practicals, that is unsolved practicals हैं ये सब, ठीक है? Practicals on determination of equilibrium level. Okay, now all these are the details that we are going to start from question number 18. Question number 18 में क्या है? Calculate ADAS. Now you need to find out. Calculate aggregate demand and aggregate supply, right? For every level of income and the equilibrium level from the following schedule, assuming that the investment is fixed. Okay, so investment क्या है? Autonomous है, इसको fix करके रखा है इन्होंने ₹40 crores. ओके, ना गिवन क्या है इसमें? देखो, गिवन है आपकी इनकम एंड कंजम्पशन. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट वी हैव टू मेक अ टेबल. ओके, यहाँ टेबल लाइक स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा. आपको मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट दे रखा है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट हियर. First, what we are going to do here, let me make a line. Just wait. Just ignore this. Okay, lines अगर सही नहीं बन रही हैं, just ignore it. This is your Y column. Okay, income. This is consumption column. Okay, then you need to calculate AD. ठीक है, लाइंस अगर सही नहीं बनी प्लीज उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती फिर से उसको सही करने में. ओके, देन दिस इज AS कॉलम. देन जब ADAS हमें सेविंग तो हमें ऑब्वियस ही बात है कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. एंड दिस इज योर इन्वेस्टमेंट कॉलम. ओके,
Now what we are going to do here, first कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 आपकी लाइंस होंगी इसकी, 1, तो कोई सब स्केल से खुद खुद ही ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, लेकिन टेबल जो मेंशन है, अगर टेबल के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट राइट इट क्विकली, ओके। ओके, सो दिस इज व्हाट इनकम आपको गिवन है, वो मैंने वाई मेंशन कर दिया, ठीक है। इनकम, देन दिस इज योर कंजम्पशन, राइट। इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है। नाउ लेट्स फाइंड आउट, इनकम आपको गिवन है 100, 200, डिफरेंस है 100 का, ओके। देन 300, then 400, then 500, and then 600, right? Now consumption आपको given है 120, जब इनकम आपकी 120 थी तो ये हुआ, ठीक है। then 200 थी तो 200 आपका कंजम्पशन हो गया, ठीक है। then 303 तो 280, then 360, right, 440 and 520, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनमस है, तो हम एग्जैक्टली सब में 40 40 लिखते चले जाएंगे, ठीक है। ऑटोनमस का मतलब नो चेंज, इट रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। गॉट इट या, इतना क्लियर हो गया। नाउ अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एडीएएस कैलकुलेट करना है, बट बिफोर दैट वी शुड नो द वैल्यू ऑफ सेविंग, राइट। तो सेविंग देखो पता करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एडीएएस, ओके। सेविंग का क्या फॉर्मूला होता है, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दिया तो आपका आ जाएगा सेविंग आ जाएगा, राइट। और आपका एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई होता है, राइट। तो सी मेरे पास है और आई भी मेरे पास है, और ए एस क्या होता है आपका फॉर्मूला, ए एस का होता है सी प्लस एस, ठीक है। कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो आपका आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई, राइट। सो नाउ लेट्स, अपने आप जल्दी जल्दी आप सब इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, सेविंग कितनी आपकी आ गई, -20, ठीक है। 100 माइनस 120 तो -20, यानी नेगेटिव में चली गई, यहाँ पे कुछ भी सेविंग नहीं है तो जीरो आ गया, मेंशन कर दिया। देन 20, देन 40, 60 एंड देन 80, ओके। देन एग्रीगेट डिमांड कितनी है, सी प्लस आई, इसको और इसको ऐड कर दोगे, राइट। तो 120 प्लस 140 आपका आज गया 160, देन 240, देन 320, देन 400 एंड 480 एंड लास्ट इज 560, ओके। देन आपका एग्रीगेट सप्लाई इट इज ए एस क्या होगा, सी प्लस एस, सी प्लस एस कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग 120 -20, तो आपका ये आ गया 100, ठीक है। देन 200, उसको अब माइनस प्लस करते जाना, ठीक है। देन 300, देन 400, देन 500, ठीक है, एंड लास्ट इज 600। अब ये भी एक सिंपल आप कर सकते थे कि आपको ये पता है ना, ए एस क्या होता है, वाई के बराबर होता है, ए एस लिखें या वाई लिखें, तो अगर हमारा हम चाहते तो सिंपल जितना भी ये वाई का पूरा है ये हम एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर सकते थे, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो सेम ये चीज आपको मिलेगी, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाईज इक्वल्स टू इनकम, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड ऑल्सो, ओके। Now equilibrium level is where AD is equals to AS। अब देखो AD is equals to AS कहाँ पे आ रहा है, ये आपका है AD एंड दिस इज योर AS, ओके। तो AD एंड AS इक्वल कहाँ पे आ रहे हैं, एट 400 level of national income, okay। At income of rupees 400, AD is equals to AS, so what you're going to write here, that is equilibrium, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, आप नीचे लिखिएगा उसके, ठीक है, कॉपीज में, लेवल
is equals to AD is equals to AS. So at 400 level of income, AD is equals to AS. Okay, so it's proof. Now let's start question number 19. वो भी आई थिंक आपका इसी तरह का है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आपको कैलकुलेट करना है? अगेन कैलकुलेट। देखो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, होते हैं इजी हैं, बट स्टिल इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है? गिवन शेड्यूल इफ द इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड, इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? ₹20 करोड़, ठीक है? ठीक है, तो अब हमें क्या क्या गिवन है, जल्दी जल्दी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, राइट? जब तक मुझे लाइंस बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप प्लीज स्केल से आप जल्दी जल्दी मेंशन कर दिए सब चीजें, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, आपको इनकम गिवन है, राइट? तो हमने यहाँ पे इनकम ले ली, देन कंजम्पशन ले लिया, ठीक है? उसी तरह हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करना है पहले सेविंग, ठीक है? और बल्कि सेविंग की जगह पहले इन्वेस्टमेंट जो गिवन है पहले उसको रखो, ठीक है? ताकि नो कंफ्यूजन। इन्वेस्टमेंट ये आपका हो गया, देन हमें सेविंग कैलकुलेट करना है, एडी कैलकुलेट करना है, और एएस कैलकुलेट करना है, राइट? तो ये आपके कॉलम्स हो गए। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इसमें कितना गिवन है आपका, जस्ट वेट। इनकम है 0, 10 से लेके 100 तक। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ज़्यादा आ गया देखो, 90, एंड देन लास्ट इज 100, ठीक है? थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टेबल दिया है इन्होंने। कंजम्पशन क्या है, अब देखो पहले मैं लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप जब तक इसके कैलकुलेशन भी आगे के भी कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया है, राइट? ये सब आपको भी इतना करना पड़ेगा, ठीक है? बगैर टेबल के अगर आप खुद सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ सही नहीं आएगी, राइट? तो आपको क्वेश्चन के लिए टेबल बनाना पड़ेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। आपको समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है बाकी चीज़ें? सो यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, ठीक है? ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके क्वेश्चंस कैसे जा रहे हैं, प्रैक्टिस कैसी जा रही है इकोनॉमिक्स की। ओके, प्लीज़ डू टेल मी। जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स हैं सबके वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लीज़ आप उसको करते रहिए, ठीक है? चलो ठीक है, इतना भी। चलो टेबल अपने आप बना लोगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? लाइंस का थोड़ा सा रहता है हमेशा मेरे साथ इशू, so just bear that. ओके, नाउ कंजम्पशन देखो कितना गिवन है, जल्दी जल्दी मैं वैल्यूज लिख देती हूँ। 20, 25, 30,
35, 40, 45, 5 का है डिफरेंस, देन 50, 55, 60, 65 एंड देन 70। और इनमें इन्वेस्टमेंट क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट बोला है 20 करोड़ फिक्स्ड है, ठीक है। 20, ये मेंशन करना जरूरी है। नाउ यू नो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट एस। एस का मतलब क्या है? सेविंग, ओके। तो सेविंग हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे, एडी में आ जाएगा सी प्लस आई फॉर्मूला, और आपका आ जाएगा सी प्लस एस, ठीक है। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट कैलकुलेटिंग बाय योरसेल्फ। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस प्लस करना है, राइट। तो आपका पहले हम कर देते सेविंग। सेविंग में क्या है देखो, इनकम कुछ भी नहीं थी लेकिन तब भी हम ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है ना, तो ये तो आपका आ जाएगा माइनस का 20, ठीक है। फिर आपकी इनकम 10 हुई और 25 है लेकिन फिर भी माइनस में ही रहेगा। तो ये चीज़ बस जरा सा ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ तक आपकी सेविंग जो है नेगेटिव है, ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। फाइन, ये डायग्राम में भी आपको मेंशन किया गया है। देन यहाँ पे भी देखो माइनस में आ रही है बिकॉज कंजम्पशन इज मोर एंड इनकम इज लेस, ओके। कंजम्पशन इज मोर, इनकम इज लेस, राइट। देन यहाँ पे क्या है? आपके सेविंग जीरो है बिकॉज बोथ आर इक्वल, वाई इनकम एंड कंजम्पशन इज इक्वल, ओके। तो मैं इस तरह आपको डिटेल में भी बताती जा रही हूँ। देन नॉर्मल अब हो गया कि इनकम ज्यादा हो गई, कंजम्पशन कम हो गया, ओके। सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दैट, ओके। देन 15, 20, 25 एंड देन 30, ओके। नाउ एडी में क्या है? सी प्लस आई, तो ये आपका 40, ओके, एंड 45, देन 50, 55, 60, 65, then 70, 75, 80, 85 एंड देन 90। एएस का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा है, सी प्लस एस, ओके। तो पहले में क्या है? जीरो क्या, ओके। देन 10, 20, देन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब चाहे आप सी प्लस एस करें या आप इनकम पूरा ऐसे ही लिख दें इस वाले कॉलम में, ठीक है। एएस में एएस का पूरा फॉर्मूला लिखें या आप इनकम पूरी लिख दें एज इट इज, वो हो जाएगा। नाउ वी हैव टू लुक वेयर वी हैव टू फाइंड आउट वेयर इज दिस, दैट इज एडी इज इक्वल्स टू एएस। तो देखो एडी का कॉलम ये है आपका, एएस का कॉलम ये है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 80, यहाँ पे 80 इज इक्वल्स टू 80, दैट मीन्स AD is equals to AS at 80 income, ठीक है। at 80 income AD is equals to AS, that is 80, okay। equilibrium level of income 80 होगा आपका, right। now this is the answer। now please take the screenshot and let's start the question। okay, now let's start question number 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड है, फर्म्स है, राइट। द इनकम एंड कंजम्पशन फंक्शन तो गिवन है देखो, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, ठीक है। एंड c इसमें गिवन है, c इज इक्वल्स टू 50 प्लस 0.80 y, ओके। इफ द इन्वेस्टमेंट, अब देखो इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ₹50 करोड़, ठीक है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम, देन बी क्या है?
लेवल ऑफ कंजम्पशन पूछा गया है। ओके, एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? इस तरह के क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। एंड सेविंग एट इक्विलिब्रियम। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहले हमें क्या करना है? कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है? इक्विलिब्रियम, अभी हमने देखा था लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू AS इज इक्वल्स टू Y, नेशनल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? AD इज इक्वल्स टू C+I, ये भी हमने पढ़ा टू सेक्टर मॉडल में। यहाँ पे गिवन इक्वेशन आपकी क्या है? गिवन C इज इक्वल्स टू, देखो ये इक्वेशन पूरी एज इट इज इसको लिख दो, Y। ओके, now put the values where C is an equation। ठीक है, तो Y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C+I, ये भी कर सकते हैं हम, राइट। तो Y के, हमें Y ही कैलकुलेट करना है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हम पहला वाला क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर सोल्यूशन दे रहे हैं। तो Y इज इक्वल्स टू C कितना है? C का यही इक्वेशन लिखेंगे, C50 प्लस 0.80Y। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट आपका है 50। ना नंबर्स को एक तरफ कर लें, तो ये 50 और 50 हो गया 100 प्लस 0.80Y। अब Y को एक तरफ कर लो तो आपका आ जाएगा 1 - 080। देखो ठीक है, जब इधर की तरफ कर लेंगे तो 0.80 इधर आ गया। तो हम इसको, ये आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो कितना बचा हुआ है आपका? 0.20Y इज इक्वल्स टू 100। ना Y इज इक्वल्स टू, ठीक है, 100/0.20। सो यू विल गेट हाउ मच? ₹500 आपकी क्या हो जाएगी? ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया। ठीक है, ये तो ये फर्स्ट का आंसर है। नाउ सेकंड का क्या हो जाएगा सोल्यूशन में? सेकंड वो पूछ रहे थे आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन, वी नो दैट C is equals to C bar plus BY। Now we know the equation, 50 plus 0.80। Y की वैल्यू मुझे पता चल गई है, that is 500। So how much you are going to get here? 50 plus 400 is equals to rupees 400 crores. Okay, so this is the equilibrium level of consumption. Now third, what we are going to calculate? Saving at equilibrium. Saving at equilibrium. Now we know that if we are going to subtract consumption from consumption को अगर आप national income से minus कर देंगे, then you will get the value of saving. So we have the value of this saving is, oh sorry, national income is 500 minus consumption we know 400. So you will get the value of saving is 100 crores. Okay, so 5 कितना था इसका? 541। ठीक है, तो ये आपकी आ गई 500 crores। ठीक है, ये आपका हो गया था 400 crores एंड दिस इज योर 100 crores। आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर नाउ। ओके, प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस आते जरूर हैं, यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेंशन द आंसर्स लाइक दिस। ओके, अलग से आंसर्स आप मेंशन करिएगा प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बट स्टिल थोड़ा सा इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस में लेंदी होते हैं क्वेश्चंस इसके। ठीक है, तो आपको इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू इकोनॉमिक्स एट ईज।
your shortcut to scoring full marks in economics. And if you like the explanation, show your support, subscribe, and stay updated with more solutions. And thank you for watching.